बिग बॉस ने भी मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया। इंडस्ट्री लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत दी है। लोगों ने बाहर आके पता चला कि इतना प्यार मिलता है, मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ। वो मुमकिन ही नहीं होता अगर मैं ये नहीं करती। Because they actually know the Shilpa. They don't know me as a character. They know the Shilpa Shirodkar. So for me that is a lot. हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे हम लोग काम करते हैं और एक आधे घंटे में डिसीजन दिया जाता है that the film is a hit or a flop. So it's very sad, but yeah, that's how it is. और ऐसे ही सालों से चलता आ रहा है, तो अभी कुछ अलग नहीं है ये। शिल्पा, किसी ज़माने में एक मंदाकिनी और कहीं आप पर भी सेक्स सिंबल का टैग लगा था। तब टैग्स होते थे, अब सेक्स सिंबल छोड़ के ग्लैमर हो गया, तो इट्स ओके, यू नो। आई मीन, मुझे नहीं लगता कि किसी के वजह से कुछ भी। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई 90s में? हाय, आई एम शिल्पा शिरोडकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रील मीट्स रियल विद पूजा सामंत। Hi viewers, and once again welcome back to our show Real Meets Real. And I would like to welcome today a very special guest, very popular actor, very sweet person in her individual life. Meet Shilpa Shirodkar, the 90s one of the most popular actor, and she was into limelight because her performance in Big Boss recently. So, hi Shilpa, welcome Hi. to our show, Real Meets Real. So, what are the new things which is happening right now? First of all, Pooja, thank you so much for having me on your show. It's a privilege. I've known you too long, and it really feels nice to be with you and talking to you about my journey, because I think you are one of those journalists who've been with me through my career, throughout my life. So thank you so much for all your love and support. And I really think people like y'all very rarely cross our paths. So thank you for that. Coming back to my journey post Big Boss, it's actually been really, really nice. I'm very glad that I took the opportunity of doing Big Boss, and it's opened a lot of avenues for me. As you know, that I'm doing a feature film called Jatadhara, which will soon be releasing this in a couple of months, I think August. So fingers crossed. I'm sure that will also open a lot of more doors for me, a lot of more avenues for me, because my motive is that I want to work. I want to do a lot of work, a lot of good work. Karan, Ata, even you know that content is changed. Filmmaking has changed. There's a lot of roles for women my age also, and very good work. So I want to be there, doing all platforms, feature films, OTT, reality TV, and obviously I've done one of the biggest shows India has. But there's always scope for more, and I'm hungry for work. So I'm glad that Big Boss opened those avenues for me. Shilpa, before doing Big Boss, you were not hesitant to do this show because though it, majorly helps to the actors, Yeah. to come into the limelight. But the other side of the Big Boss is, it has the other side also, Yeah. as the coin has two sides. Sometimes it becomes controversial as well. Yeah. So you were hesitant to do this I show? was never hesitant. In fact, when I got that call, I knew I wanted to do it. And I myself am a Big Boss fan. And I have nothing to hide, to be honest. My family is aware of everything. And that's what matters. I learned one thing from Big Boss, that you can't please everybody. You have to do what your heart says is right for you. There will always be conflict of opinions. There will be some people who love you. There will be some people who don't love you. There will be some people who will judge you. There will be some people who will not judge you, or judge you for the right things. So you can't please everyone in life. If you go into that rigmarole of pleasing people, then you'll always find yourself only doing things for others and never yourself. So that's one thing Big Boss taught me, that opinions, point of views, judgments, they're all for people to do. I just have to do my work. And for me, honestly,
like everybody knows, I myself am a Big Boss fan. So for me, going into that show, I've seen all the seasons. And every time I just see the seasons, I say, I want to go there. So when that call came, actually, it was like a dream come true for me. I never thought so much. I never thought what people will say. I never thought what will happen. I went because I wanted to do Big Boss. Big Boss के घर के अंदर जाने के बाद पता चला कि what it can do for you. I honestly never went with the intention कि I want Big Boss to be my platform to do so many things. That was never my intention. कुछ स्ट्रैटेजी सोच के रखी थी शिल्पा आपने कि काश। बिग बॉस में जाने के बाद ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस तरह से मैं बर्ताव करूंगी, अगर कोई मुश्किल घड़ी आई, किसी ने स्टेटमेंट अगर बना दिया, किसी बात का इश्यू हो गया, तो किस तरह से आपका स्टेप रहेगा, व्हाट यू विल डू, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि स्ट्रैटेजी बना के उस घर में, कभी कभी ऐसा लगता नहीं है, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उस घर में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग जो है वो हम सबके लिए अजनबी थे. कौन कैसा है, क्या है, कुछ भी काम नहीं करेगा. और कितने दिन स्ट्रैटेजी चलेगी आपकी, कहीं कभी ना कभी तो असलियत बाहर निकलेगी. तो जब मैं घर के अंदर जा रही थी तो मुझे टीम ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि जस्ट बी योर सेल्फ. एंड एक्चुअली आई वेंट टू एक्सपीरियंस व्हाट बिग बॉस वुड बी लाइक. पहले 2-3 हफ्ते तो मेरे लिए सब अनरियल था. लोग नए थे, वो सिचुएशन नहीं थी. मैं सिर्फ बिग बॉस के, वो बहुत बड़ा बिग बॉस जो लिखा होता है गार्डन एरिया में, मैं देखती थी और बोलती थी माय गॉड, मैं एक्चुअली यहाँ हूँ. तो इट वॉज लिटरली सो सरियल फॉर मी, यू नो, कि मैं अंदर हूँ और एक्चुअली कोई स्ट्रैटेजी नहीं की. आई वॉज जेन्यूनली बीइंग माई सेल्फ. बहुत अच्छे रिश्ते बनाए मैंने उस घर में, और उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन रह पाई हूँ. किसी कंटेस्टेंट के साथ आपकी अनबन भी हुई, किसी के साथ दोस्ती भी हुई, लाइक करणवीर मेहरा जी, आपकी बहुत अच्छी जी. दोस्ती हुई, और करण और चुम दोनों के साथ. यस. और इसके साथ सलमान के साथ कैसे रिश्ते बने? सलमान आप ही के डिकेड के पॉपुलर स्टार है, जो आज भी जी. है, कल भी रहेंगे. जी. तो सलमान के साथ मैंने कभी भी काम नहीं किया था. मैं सलमान को ऑन अ प्रोफेशनल लेवल नहीं जानती थी, पर हाँ, जैसे आपने कहा, हम एक ही एरा के कलीग्स हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि सलमान ने मुझे बहुत बहुत प्यार, बहुत इज्जत दी थ्रू. मैं तो रुकती थी कि वीकेंड आएगा और मैं सलमान को देखूंगी. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ, ही यूज्ड टू पुल माय लेग, ही यूज्ड टू मेक मस्ती मजाक ऑफ मी. एंड सो यू नो, इट वाज वेरी वेरी नाइस. और इनफैक्ट नॉट ओनली सलमान, जो भी एक्टर्स आए या प्रोड्यूसर्स आए या जो भी आए, उन्होंने सब ने मुझे बहुत बहुत इज्जत दी. जो भी घर के अंदर आते थे उन्होंने भी बहुत. और तब पता चलता है कि यू नो व्हाट योर वर्थ. क्योंकि मैं कोई भी बैगेज लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बिग बॉस का घर ऐसा है कि अगर हम लोग ये सोच के जाए कि मैं ये हूँ, यू विल क्रम्बल. तो द बेस्ट थिंग इज, जो भी आपने किया है, आपके जो भी अचीवमेंट्स है, वो घर के बाहर रखो, घर के अंदर गो एज अ को कंटेस्टेंट, क्योंकि दैट इज द ओनली वे दैट यू विल सर्वाइव. सबके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की है मैंने. कई लोगों के साथ रिश्ते नहीं बन पाए, कई लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बन पाए, और कई लोगों के साथ नहीं बन पाए. मतलब आई थिंक इट्स ऑल इन द हाउस, सबको पता है. एंड और ऐसा भी नहीं है कि यू होल्ड एनी ग्रजेस और व्हाटएवर इट इज, इट वाज जस्ट द वे इट वाज. लेकिन जिनके साथ रिश्ते बनाए, वो मेरे साथ फॉर लाइफ रहेंगे. तो आई थिंक इट्स रियली ब्यूटिफुल कि मैं वो कर पाई हूँ. सलमान का कौन सा ऐसा पहलू है जो पहली बार आपके सामने आया? क्योंकि आप दोनों ने कोई फिल्म तो नहीं की जी, और सभी सलमान को भाईजान कहते हैं जी. उनके कई किस्से मीडिया में आते रहते हैं, शूटिंग के दौरान की बातें सामने आती है जी. तो बिग बॉस का आपका जितना भी स्टे था, उस दौरान वीकेंड पे जब भी सलमान के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, कोई ऐसा पहलू आपके सामने आया जो पहले आप नहीं पता थी? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं, नया कुछ नहीं था. पर हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको कि सलमान की जो डेडिकेशन टू वर्क है, जो मैंने हमेशा सुनी है, हर
को एक्टर के साथ या जो भी प्रोड्यूसर्स बात करते हैं, मीडिया बात करती है, उनका जो फोकस डेडिकेशन है, उन्होंने कभी भी वीकेंड के वार पे या कुछ भी उन्होंने हमें ऐसे मतलब ही यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू बी स्टैंडिंग फॉर 8 आवर्स विद अस। तो ऐसा लगता था कि सब यही बोलते थे घर में, यहाँ सर आए हैं, सर मतलब his passion for work is so much कि it's something for the youngsters to see। हम लोग अभी मैंने देखा है कि 2-2 1-1 घंटे के बाद लोग बोलते ब्रेक ले लो यार, जरा एक ब्रेक दे दो, ये करो, बट दैट मैन just made sure he finished his work and went away। It was just too good। His dedication for his craft is unbelievable और शायद इसीलिए वो सलमान खान है। काफी अच्छे एक्सपीरियंस रहे। क्या कोई ऐसा क्षण भी आया कि आपको पल भर के लिए लगा कि शायद गलती हुई बिग बॉस में आने की? ऐसा कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा मैंने ये क्यों किया। और एक्चुअली मुझे ये कई लोगों ने पूछा है कि डिड यू एवर फॉर अ मोमेंट थिंक दैट यू डोंट वांट टू डू दिस और व्हाई डिड यू डू दिस? एंड आई सेड नो, नेवर। In fact, if I get an opportunity to go again, I'd love to go back। वाओ। I think it taught me a lot and बिग बॉस ने भी मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया, मेरे इंडस्ट्री लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत दी है। लोगों ने बाहर आके पता चला कि इतना प्यार मिलता है मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ, और ये मुझे वो मुमकिन ही नहीं होता अगर मैं ये नहीं करती। Because they actually know the Shilpa, they don't know me as a character, they know the Shilpa Shirodkar। So for me that is a lot, Before entering to the Big Boss house, have you ever discussed with your husband Aparesh or of course your sister? My whole family knew I was entering the house और उनका support, उनको पता था कि मैं हर September, October to January I used to be glued on TV, because जैसे लोग बोलते हैं ना, Big Boss is like it's like a rage, there's an audience that you cannot even imagine। I was one of that। So I knew and they knew how important it was for me to get an opportunity to do what I've always dreamt of। So they was very, very supportive, and to be honest, Pooja, you're a married woman, a lot of things are not possible without the support of the man of the house। And my husband and my daughter, my sister, my brother-in-law, my niece, my nephew, they were all there by my side supporting me and loving me, and they were just there। Oh wow, right। किस प्रकार के स्वभाव का परिवर्तन हुआ शिल्पा आप में बाहर आने के बाद? कुछ ऐसी क्वालिटीज जी थी जो पहले थी और बाहर आने के बाद आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो 3.5 महीने हम घर के अंदर रहे हैं, उसमें एक चीज़ रियलाइज़ की है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। दुनिया में सारी चीज़ें जैसी होनी थी वैसे होती गई, हमें सिर्फ पता नहीं था क्योंकि हम अंदर थे। एक दूसरी बात जो मैं मानती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए इज़ दैट हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और ओपिनियंस लेना ज़रूरी नहीं है, और यू डोंट नीड टू गेट अफेक्टेड बाय इट। लाइक अभी आप देखते हैं सोशल मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग, लोग कमेंट्स करते रहते हैं और ये करते, तो माई टीम ऑलवेज सेज मैम डू यू इवन रीड योर कमेंट्स, एंड आई एम लाइक नो आई डोंट। सो ही सेज ओके मैम बट यू डोंट दिस। I said, listen, I said, that's one thing Big Boss taught me. Some people in the house, when I was in the house, there was an audience that did not like me or did not understand me. There was an audience who loved me. So I'm okay with fine, that's how the world is. If you try to please the ones who are not in favor of you, you'll not be yourself. If you try to do more for the people who love you, you'll still not be yourself. They love you for who you are. So just be yourself। At least I know कि मैं रात को अच्छे से सो पा रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैंने महसूस की है कि ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली पूजा, ये इंटरव्यू बहुत कम पड़ जाएगा अगर मैं आपको हर चीज़ गिनाऊँ तो, लेकिन ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं
जो मैंने इनफैक्ट मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बात करती हूँ ना, देयर ओ दिस दैट, आई एम लाइक या बट डू यू इवन आस्क दीज क्वेश्चंस? नो, आई डोंट. इतनी चीज़ें पता चली कि घर के अंदर लोग हमारे बारे में क्या बोलते थे. सो डिड यू इवन पिक अप द फोन एंड आस्क देम? आई एम लाइक नो. ओके, आई मीन व्हाट्स द नीड? There's really no need to do that. My family loves me. My friends, I have गिन के 2-3 friends हैं मेरे, they love me, they respect me. What else you और want? जितनी इज्जत मुझे उस घर के अंदर मिली है और बाहर आके इतना प्यार मिला है, मैं और भगवान से क्या मांग सकती हूँ? कुछ भी नहीं मांग सकती. Very true. मेरा काम फिर से शुरू हो गया है. Signed a film, I'm doing a couple of other things. तो मैं और कुछ भी नहीं मांग सकती. Why be unhappy about people who don't, you know, who don't matter in your life? आपने एक फिल्म का अभी जिक्र किया, जटाधारी. जटाधारा. हाँ, जटाधारी. तो किस प्रकार की फिल्म है, थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हैं? जी, it's a supernatural thriller. Wow. And it's going to be released, pan-India release, Telugu, Hindi, Tamil, Your first Malayalam. Telugu film? My second Telugu. Second Telugu. I did one when I was in the 90s called Brahma, but this is my second. And it's a supernatural thriller, really nice. There is Sudhir Babu, there is Sonakshi Sinha, and there's me, and there are other character actors as well along with me. Interesting. Yeah. And it's been produced by Prerna Arora and Z Studios. And yeah, so it's going to be my first theatre release. Who is directing? Venkat sir is directing Okay. the film. शिल्पा, एक अरसे के बाद, मतलब बिग बॉस से निकलने के बाद आपकी वो सक्सेसफुल पारी रही बिग बॉस की, यू माइट हैव एक्सपेक्टेड दैट कि चीज़ें बदलनी शुरू होगी, और वैसा हो रहा है. तो एक समय के बाद आप जब कैमरा फेस कर रही है फिल्म के लिए, क्या क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी, कैसा महसूस किया? क्योंकि 90 से 2000 के डिकेड तक आप बेहद बिजी रही. Yeah. यू डिड बेस्ट ऑफ द फिल्म्स विद बेस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, जिसमें डांस भी किया, एंटरटेन भी किया, काफी इमोशनल सीन भी दिए जी. तो उस समय के बाद आप कैसा रिएक्ट कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है कैमरे को फिर फेस कर रही हूँ? एक्चुअली नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, लेकिन जब जब मैं सेट पे जाती हूँ ना, तो आई थिंक इट जस्ट फ्लोज. ओके. आई थिंक द एक्टर इन यू इज ऑलवेज अलाइव. तो और यू नो, लोग इतने अच्छे हैं कि वो महसूस ही नहीं करने देते कि अच्छा आप इतने साल के बाद आई है तो आपको कुछ पता नहीं होगा. पर मैंने जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब मैंने ये फिल्म साइन की थी और मैं शूट के लिए जा रही थी, तो मुझे अपरेश ने कहा कि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फिल्म मेकिंग हैज़ चेंज्ड, एक्टिंग हैज़ चेंज्ड. तो मैंने उनको बोला कि आई डू रियलाइज दिस, एंड आफ्टर आई फिनिश प्रेरणा's फिल्म, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, आई जस्ट जम्प्ड इनटू द फिल्म. तो आई सेड आफ्टर आई फिनिश प्रेरणा's फिल्म, आई एम गोइंग टू गो फॉर एक्टिंग वर्कशॉप्स, बिकॉज आई थिंक दैट्स अनदर वे फॉर मी टू ग्रो एज एन एक्टर. क्योंकि अभी आजकल है ना, सब इतना नेचुरल हो रहा है, तो it's good to work with the younger lot. Yeah. Do some workshops and all. So I'm going to be doing that as well. Oh, okay. In Mumbai only? Yeah, in Mumbai. Oh, that's great. Yeah. तो सोनाक्षी के साथ आपका कोई सीन है? हाँ, मैंने अभी उसके साथ बहुत अच्छा सीक्वेंस किया है. It's going to be like the main sequence of the film. And she's so lovely, इतनी स्वीट है वो. तो जब सोनाक्षी लॉन्च हुई थी तो मुझे सब बोलते थे कि you and Sonakshi look so similar, you and Sonakshi look so similar, and there is a lot of similarity between the two of us, in terms of the way we look. तो मैं उसके साथ एक सीन शॉट कर रही थी. तो दिस माई फर्स्ट मीटिंग विथ हर. वो पीछे से आती है, बोलती है, has anybody told you and I look similar? And I said, has somebody told you this? She says, no, I can see. So I said, when you got launched, everybody told me that you and I look similar. So yeah, और literally मतलब टीम बोलती थी, बड़ी बहन छोटी बहन, बड़ी बहन छोटी बहन. It was like that. She is damn sweet, very sweet. Yeah. तो अच्छी तरह जेल हो गई है आप. मैं तो सबके साथ अच्छे से जेल होती हूँ. You know me, Pooja. Yes. I don't have any hang-ups or anything like that. And I think hang-ups करके रखा क्या है? You just have to, you meet people in your life for a reason,
explore that relationship and see where it goes. So Shilpa, we were talking about the changes in the industry around you. कैसा लगता है आपको इन चेंजेस को देखते हुए? I think it's a very positive thing. Changes लाइफ में होती रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंजेस को अडेप्ट करना एक टास्क है. बिकॉज यू नो आई थिंक हम लोगों ने ये देखा है अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने देखा है उनके पेरेंट्स के साथ. नो वेरी फ्यू पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि चेंज इज going to happen, it's constant and we have to blend in with it. हम लोग अपने आइडियोलॉजीज हमेशा हम सही नहीं रह सकते हर चीज़ में. तो मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री में भी वो चेंज आया है और जो लोग चेंज हुए हैं इंडस्ट्री के साथ अपने रूट्स को साथ रखे हुए वो सस्टेन कर रहे हैं आज भी. सो आई थिंक इट्स फॉर ऑल द गुड रीजंस दैट देयर द चेंजेस हैपेंड एंड वी अडेप्टेड टू इट वेरी वेल. And we are making some very good cinema. We are making some good stuff. We are all over the globe today. So I think that's one of the best things for us as an industry also. कई अभिनेत्रियों से जब हम बात करते हैं मीडिया वाले तो कहीं ना कहीं उनका दर्द या फिर जो दिक्कतें उन्होंने सामने से महसूस की, क्या उस तरह की दिक्कतों का अब सामना नहीं करना पड़ता? मतलब यू नो इन दोज टाइम देयर वेयर one makeup room, sometimes there were no changing room for the actresses. Yeah, see that's a change ना. हम लोगों ने तो आउटडोर में झाड़ों के बीच में भी चेंज किया है क्योंकि गाने में चेंज करना था और होटल बहुत दूर था. अभी वो फैसिलिटी है कि एक वैनिटी दी जाती है, like you said actors have independent vanities and things like that, so that's fabulous. There are toilets. हम लोग तो कितने बार टॉयलेट 18 घंटे जाते नहीं थे और अगर कहीं जाना पड़ता था तो वी हैड टू गो इनटू द ट्रीज एंड द वुड्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो फॉर अस ऑब्वियसली आई विल से पॉजिटिव ओनली. या बिल्कुल. आपके दौर के सभी के साथ आपने काम किया जी. तो ऐसे कौन से एक्टर्स है या एक्ट्रेसेस है जिनके साथ आपकी दोस्ती बरकरार है, क्योंकि इन बिटवीन आप इंडिया में थी भी नहीं? जी एक्चुअली सारे मेरे दोस्त हैं. मेरा किसी के साथ अनबन है नहीं, लेकिन सब अपने अपने प्रोफेशन में इतने बिजी है कि देर इज़ नो चांस टू रियली पिक अप द फोन एंड मीट अप फॉर कॉफ़ी और टी और वट एवर इट इज़. लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं मिलूँगी उसी तरह मिलूँगी जैसे मैं उनसे पहले मिलती थी. तो इतना तो है. और इवन व्हेन मैंने सुना है कि जब व्हेन आई वाज इन द हाउस अ लॉट ऑफ देम केम आउट टू सपोर्ट मी. सो फॉर मी दैट सेज अ लॉट यू नो. यस बिल्कुल. शिल्पा, ये एक कोइंसिडेंट की बात होगी शायद एज पर मी. आपका अनिल कपूर जी का और माधुरी जी का काम जी रिकू जी देख रहे थे. जी. तो उनके साथ कैसा रहा? क्योंकि ये कहते हैं कि आप तीनों के करियर में उनका बड़ा योगदान. ऑफ कोर्स आई थिंक रिकू जी वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर मी क्योंकि मेरा लॉन्च पैड क्या एक बड़े बैनर के साथ नहीं हुआ. तो छोटी फिल्में कर करके मैंने अपना नाम एस्टैब्लिश किया इंडस्ट्री में. और रिकू जी का साथ अभी भी है. आई एम स्टिल इन टच विद रिकू जी एंड हिज फैमिली एंड ही इज़ ऑलवेज देयर. ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर मी. He was so happy जब मैं घर के अंदर गई. He was so happy when I came out. He came and met me. He's in touch with Apresh, Anushka, all of us, and we are like one family. You know, काम करे ना करे, it doesn't mean कि you're not in touch. I will always be there supporting Riku ji for in life forever, and he will do the same for us. So there is mutual respect and there is a lot of love for the families. So. शिल्पा, आपने जैसे हम बात कर रहे थे, आपने अपने ज़माने के सभी बड़े सितारे उनके साथ काम किया, मेल एक्टर्स. तो क्या सबके बारे में थोड़ा सा आप बता सकती है, लाइक वर्किंग विद अमित जी, वर्किंग विद गोविंदा जी, विद अनिल कपूर, वेल मैं सबके साथ मैं आपको सिर्फ एक बोलूँगी सबके लिए. एस्टैब्लिशमेंट एज एन एक्टर स्टार्टेड विद वर्किंग विद अमित जी, रजनी सर, गोविंदा, जैकी. आई इवन वर्कड विद अशोक कुमार जी, अमजद खान जी, महमूद जी. आई वर्कड विद देव साहब, धर्म जी. आई वर्कड विद everyone from I think 2 generations and मैंने सिर्फ
एक देखा है उनमें कि उनमें जो पैशन था अपने काम के प्रति, दैट इज आई थिंक माई लर्निंग टुडे. आई डिसिप्लिन, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर पीपल. एक यूनिट जो होती है ना, वो यूनिट फैमिली कब बन जाती है हम लोगों को पता नहीं चलता. एंड their respect for the director, for the producer, for the cameraman, for the spot, for the lightman. मतलब मैं अभी भी मुझे याद है जब अमित जी सेट के अंदर आते थे, वो सबको हेलो, नमस्ते 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 करते करते अपने स्पॉट पे आ जाते थे. आई डोंट थिंक कभी भी 2 फिल्में मैंने की है उनके साथ, उन्होंने कभी भी किसी को भी इग्नोर किया है. एंड आई फील आज जब मैं इवन घर के अंदर लोग बोलते आप ऐसे क्यों हो, मैंने कहा आपको पता ही नहीं है लोग कैसे हैं बाहर, बिकॉज यू आर सो इन योर जोन, इन योर लिटिल कुकून, कि आपको लगता है आप जैसे हो वैसे ही हो. लेकिन ये इंडस्ट्री एक्चुअली सिखाती है हाउ टू बी विथ एवरीबडी. हम लोग सबके साथ काम करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता. You work with people from all walks of life, all cultures, all communities, all colors, and this is what our industry is all about. It's one. We are one. और ये लोगों को नहीं समझ में आता, आजकल की जनरेशन को नहीं समझ में आता. And that is probably one of the reasons why we are where we are. और यही मुझे सीख मिली है मेरे सारे लोगों के साथ, कि एक अच्छा रहना या अच्छे से बात करना किसी के साथ doesn't make you too sweet or too, it's just humanity, you know. और मैंने ये अपने यही इंडस्ट्री में सीखा है, और मैं मेरी बेटी को भी यही बोलती हूँ, मैं मेरी फैमिली से भी यही बात करती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी इजी टू स्माइल ओवर समथिंग, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्प्रेड लाफ्टर. और बिकॉज ऑफ यू अगर कोई हंस दे, इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं हो सकती. आपके करियर की एक इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है खुदा गवाह जी. तो इतने बड़े विक्रम गोखले, अमित जी, श्रीदेवी, इन सभी के साथ काम करने का आपका तजुर्बा तो बहुत ही ग्रेट होगा. कुछ खास मेमोरी शेयर कीजिए. खुदा गवाह के साथ मेमोरी ये है कि हम और खुदा गवाह एक ही टाइम कर रही थी. तो हम में मैं अनीता थी जो बहुत ही चुलबुली एंड हैप्पी बबली गर्ल थी, और खुदा गवाह में मैं हिना थी जो बहुत सटल पुलिस ऑफिसर, यू नो, whose father has been is no longer there. अमित जी has taken care of her. तो मुझे याद है कि हम लोग महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे वो जेल सीक्वेंस का, और अमित जी के साथ मेरा सीन शुरू हुआ. तो फिर सीन शुरू हुआ एंड आई वॉज जस्ट, बिकॉज मुझे तब पता नहीं था, मैं बहुत नई थी, तो मुझे पता नहीं था कि कैरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे, मतलब हाउ डज इट वर्क. और उस टाइम पे वर्कशॉप्स और नहीं थे. तो हम लोगों ने शुरू किया सीन, तो अमित जी ने कट किया, बोला मुकुल और अमित जी बोले कैन यू कम एंड सिट विद अस फॉर 10 minutes, एंड आई एम लाइक या. तो अमित जी ने बोला यू आर नॉट अनीता, यू आर हीना, हाउ विल हीना डू दिस. And he actually sat with me and did my lines with me. And that scene was so beautiful, so for me that is learning. तब पता चला कि हर फिल्म अलग फिल्म है हर एक्टर के लिए. You can't carry forward a personality in every film. शिल्पा, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि 90 के डिकेड में आप टॉप पे थी, अगर इस दौर में होती तो आपको मोर सब्सटेंस मिलता कैरेक्टर्स में? बिकॉज थिंग्स you can't compare what we did then to what things are going on today, because I feel 90s के हीरोइंस आज भी बहुत कमाल कर रहे हैं. तो I don't agree कि अगर हम लोग इस फेज में होते तो हम लोग और करते. आज काजोल इज डूइंग सो वेल, रवीना इज डूइंग सो वेल, करिश्मा इज डूइंग सो वेल, करीना इज डूइंग सो वेल. I mean everyone who were working at that time and are working are doing very very well for themselves. तो I don't think कि कुछ अलग होता, कुछ भी अलग नहीं होता. हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, हमको अभी भी काम मिल रहा है, और I think it's fabulous. I mean that whole change is fabulous. बिल्कुल बिल्कुल. शिल्पा, किसी जमाने में एक मंदाकिनी और कहीं आप पर भी सेक्स सिंबल का टैग लगा था.
इस वजह से क्या आपके करियर को नुकसान बिल्कुल पहुंचा? नहीं। अच्छा, आई डोंट थिंक कोई भी टैग किसी के भी करियर में कुछ भी प्रॉब्लम Matter या इट हिंडर्स इनटू योर ग्रोथ एज एन एक्टर। तब टैग्स होते थे, अब सेक्स सिंबल छोड़ के ग्लैमर हो गया, तो इट्स ओके, यू नो, आई मीन मुझे नहीं लगता कि किसी के वजह से कुछ भी। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई 90s में? नहीं बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। Yeah, so then you said, do you think it stopped your growth? So I just want to ask you that, do you think that I something don't at think that that time? way, but you know, the actresses which did best, like Meena Kumari, Nargis, you know, that era was different. Your era is different. Yeah. Today's era is different. Yeah. So in that context, So I have asked you. no, I don't think so. I don't think any of these tags really mattered. We were just doing our work, and the tags were for the people to put for us. तो हम लोगों को नहीं लगता कि कोई भी टैग के वजह से कोई ज्यादा काम कर रहा था या कोई कम काम कर रहा था. I don't think that's true. So that is the greatest mileage and greatest contribution done by you. You work with all Yeah, the I'm top very proud actors. of myself, and I'm very proud of the work I did. Yeah. And I don't think that I could have done it any different. Absolutely. कभी आपको ऐसा लगा कि आप और नम्रता की कंपैरिजन हो रही है? बिल्कुल नहीं. Namrata was a model, and she started modeling after I came into the industry. She became Miss India in 1993. She was at a different level, or Yes. I was in a different level. तो comparison हम दोनों के लिए तो कुछ भी नहीं था. लोगों का काम है कहना, what can you do? So yeah, I mean it suits them. They did what they did. So, She did few films, but yeah, she did a few films, and very good films, in fact. इस बारे में क्या कहना चाहेंगी शिल्पा? आप करियर के टॉप पर हमेशा से थी, but you did or you left the industry when you were doing very well. Yeah. So was that any moment of regretting that? Not at all. I have no regret in anything I've done, Pooja. I have. I got married in 2000. I'm going to be 25 years married. Wow. This year, and I don't believe in regret. I did what I thought was the best thing for me to do, and I'm so glad I did it. मेरी बेटी है एक 21 साल की. Apresh and I have been married for 25 years. We've lived away from the country for many years Yes, that I've been yes. married, and I feel that it's nice. क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं वो शायद वो पार्ट मिसिंग रहता मेरी जिंदगी में. And I feel today it's time for me to come back, and that's what I'm doing. शिल्पा, जब आप विदेश में थी अपने हस्बैंड अपरेश के साथ, तो वहाँ भी आप फिल्में तो देखती होंगी, Of course. तो क्या कभी ऐसे लगा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ? नहीं. मैं काम को लेके मैंने कभी मिस नहीं किया. आई मिस्ड बीइंग बिजी बिकॉज अपनी इंडस्ट्री में मैंने बहुत यंग एज में काम शुरू किया था. और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग एंड डूइंग समथिंग यू लव टू डू. तो वो एक पार्ट मिसिंग था. बट आई डिडंट मिस द ग्लैमर और यू नो थिंग्स लाइक दैट. So that's what it is. Like I said, I don't have any regrets for anything. क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो ये पार्ट मैं आज आपके सामने बैठी नहीं रहती ये डिस्कस करने के लिए. बिल्कुल. तो हम फिर उसी मुद्दे की ओर आते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बदलावों को लेके, या फिर पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री में फिल्में उतनी नहीं चल रही है, तो इस सेटबैक की वजह पर आप कुछ सोचती हैं? I have no idea. I'm an actor and I just do my job. फिल्में चल रही है नहीं चल रही है. Obviously it's not good for the industry because we need films to work, to bring more films out. And पर honestly मैं अपना काम कर रही हूँ and I'm giving my best. और इनफैक्ट हम लोग, मैं और सोनाक्षी यही बात कर रहे थे कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे हम लोग काम करते हैं, और एक आधे घंटे में डिसीजन दिया जाता है दैट द फिल्म इज़ अ हिट और अ फ्लॉप. सो इट्स वेरी सैड, बट या दैट्स हाउ इट इज़. और ऐसे ही सालों से चलता आ रहा है, तो अभी कुछ अलग नहीं है ये. फिल्मों के री रिलीज होने का ट्रेंड भी शुरू हुआ है. तो अगर फिल्में री रिलीज होती है तो आप अपनी कौन सी फिल्म री रिलीज होना करना चाहोगे? बहुत सारी. किशन कन्हैया, हम, खुदा गवाह, आंखें, मृत्युदंड, गोपी किशन, पहचान, रघुवीर, बेवफा सनम, गजगामिनी. I would like Gajgamini to release again, actually.
It that would was be a good one. fantastic. Yeah, it would have been a good one. मेनी Yeah. फिल्म. ऐसा कोई कैरेक्टर है शिल्पा जो करने के बाद आपको ऐसे लगा कि नहीं मैं इस कैरेक्टर के साथ बहुत रिलेट करती हूँ? मैंने एक टीवी सीरियल किया था एक मुट्ठी आसमान जी के लिए इन 2013 और कमला का जो एक आइडियोलॉजी थी कि मेरी बेटी वो नहीं करेगी जो मैं करूँगी, वो मैं बहुत उससे रिलेट करती हूँ. मतलब आई फील दैट्स वेरी गुड एंड एवरी वुमन शुड बोलते ना ट्रांजिशन इजी होता है कि अगर बेटी वही करेगी जो बाप या माँ करती है तो उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली रिलेट टू बिकॉज या आई थिंक इट वाज नाइस. इस दौर में काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस अपना सेकंड वेंचर शुरू करती है. somebody few actresses have become producers. Yeah. Deepika Padukone and then Alia Bhatt also. Yeah. तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अब आप चूंकि मुंबई में वापस आ चुकी है, काम नए सिरे से शुरू कर चुकी है, तो यू वांट टू वेंचर सम अदर? I actually, when I came back from overseas in 2010, we had started a production company. I'd also produced my first Marathi film called Sau Shashi Devdhar. But unfortunately, that film didn't do well. तो अभी फिलहाल प्रोडक्शन हाउस खोलने का कोई भी इरादा नहीं है. इरादा है कि अच्छा काम करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना है फिर से. तो वही है. बिल्कुल. एनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स? The house has taught me a lot. There's no personal likes and dislikes at all. Okay. Anything else you want to specifically mention, which I have not asked you? No, nothing really, Pooja. I think it's been great talking to you, and I've spoken my heart out to you. And for me, that's special. तो रही बात अपने आप की, तो I'm working. I'm looking for work still, and I'm hoping कि when I sit with you next time, I'll have more to talk about, many more projects. Of course. Any plans to launch Anushka, or she wants to be into acting? नहीं, अनुष्का को एक्टिंग नहीं करनी है. वो अभी फ़िलहाल स्कॉटलैंड में पढ़ाई कर रही है एंड शी इज़ फिनिशिंग हर डिग्री. शी इज़ ग्रेजुएटिंग दिस ईयर. उसके बाद वो लॉ करना चाह रही है, तो वो लॉ कंप्लीट करके शी वांट्स टू बी अ लॉयर. That's fantastic. So at this moment at least वो नहीं बोलती है एंड फेयर इनफ. आई मीन उसको अभी फ़िलहाल नहीं करना है, तो अगर कभी जाके उसने माइंड चेंज कर लिया, सो दिस इंडस्ट्री विल आई एम श्योर एक्सेप्ट हर विद ओपन आर्म्स. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you so Shilpa. much. Thank you. Pleasure talking to you. Same. So she was Shilpa Shirodkar, and we spoken a lot about her career, her plans, and she's back into the acting with more wonderful roles with lots of substance in it, and you will find a new Shilpa Shirodkar now. So it's our duty now to welcome with open arms. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.